Heart is not trying to say anything, it is just trying to make sure every part of the body gets the nourishment of blood flow. So it's your brain speaking in different tongues. So before you invest this life into something, you must look whether today if I invest my life into this, after 25 years, will it still mean a lot to me? After 50 years, will it still mean a lot to me? At the end of my life, if you turn back and look, will I be proud of this or will I be ashamed of what I'm doing right now? नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें दिल से सोचना है कि दिमाग से। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल से सोचो, कुछ लोग बोलते हैं दिमाग से सोचो और कुछ लोग बोलते हैं दिल और दिमाग से दोनों से सोचो। पर इस बात में कन्फ्यूजन है कि कब, कहाँ पे हमें क्या करना है। इसका शायद सही जवाब इस वीडियो जो कि सद्गुरु जी का वीडियो है, हेड और हार्ट, व्हिच वन टू लिसन टू। आज हम इस वीडियो को स्टडी करना चाहेंगे और देखेंगे कि सद्गुरु जी हमें हमें यहाँ पे क्या सिखाना चाहते हैं। तो मेरे साथ हैं मेरे 2 को-होस्ट मिस्टर अविनाश और डॉक्टर वर्षा। मेरा तो अभी है तक ये डाउट है, लोग लोग बोलते हैं दिल से सोचो, दिमाग से सोचो। मैं तो अभी भी इसी में फंसा हुआ हूँ कि कौन सा वाला सोच दिल का है, दिमाग का, मुझे खुद ही नहीं आज तक नहीं पता चला। तो देखिए हाउ डू आई इसका आइडेंटिफाई? हाँ, सिंपल आंसर हम लोग दे सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफोरिक। जितना अभी तक मैं समय जानता हूँ और फील करता हूँ, इट्स अ मेटाफोरिक। ब्रेन मीन्स लॉजिकल, व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग लॉजिकली हमने उसको एनालाइज किया, देन आफ्टर दैट वी आर डूइंग, स्पीकिंग और बिहेविंग। और हार्ट मीन्स इमोशनल, जैसे कहते हैं ना मैथमेटिक्स में है ना, रेशनल एंड इरेशनल। जैसे आर्ट है, जो पेंटिंग है, दैट इज इरेशनल, वहां पर लॉजिक नहीं है। एक इंसान जो फील करता है वो कैनवस पे उतारता है। तो हार्ट को जनरली हम लोग इरेशनल कॉन्सेप्ट में लेते हैं। ये वहां पे हर जगह लॉजिक के बियॉन्ड कुछ है, तो हार्टफुल थिंकिंग है। कि जहाँ पे हमारा ब्रेन बोल रहा है कि नहीं, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है या फिर लॉजिकली हमें ये करना चाहिए, बट हार्ट इज स्टिल सेइंग कि नो, माय गट फीलिंग इज सेइंग गो देयर। सो बस यही है। पर देखते हैं कि सदगुरु जी क्या बोलते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Namaskaram, Sadhguruji. Uh, the first question that I want to ask is actually related to me. I'm in the last year of engineering, so now there is a very big decision that I have to make now, and people have told me that if I take decisions from my heart, I'll be successful in life. So, but there lies a problem. The problem is that I don't know which thought is coming from my heart and which thought is coming from my brain. So how can I figure out like which thought is from my heart and which is coming from my brain? The heart makes only two sounds, lub-dub. Unless the local girls are disturbing it and it's going a little crazy. Otherwise, it makes only two sounds. Rest of the noise is all coming from your head. This idea that something comes from the heart, something comes from the brain is it's metaphoric, but unfortunately a whole lot of people are एग्जैक्टली व्हाट ए फ्रीक्वेंसी मैच किया। और नहीं, ये मेटाफोरिक ही है। मुझे नहीं मालूम था सदगुरु जी भी यही बोलने वाले हैं। ओह माय गॉड। taking it literally. There was a time in many parts of the world, particularly in Arabia, the medical science in Arabia believed the blood is pumped from the liver. You might have heard Urdu sayings about Kalija, have you? Because they believed blood is being pumped from the liver, because liver is a far more complicated organ than the heart. Heart is a simple pump. So do not give it any more responsibilities other than continuously pumping the blood and keeping you alive, unless somebody here breaks it. So, about the last year of engineering, I want you to change that language because this happened. Can I tell you a joke? It's okay? Yeah. You're pretty Yes. serious about this, that's why I'm asking.
This happened. A very celebrated scientist was at a dinner and he was not grandly dressed or anything, he was looking very ordinary. So the lady who was, you know, sitting next to him didn't pay much attention to him, she doesn't know who he is. But after some time, just to be polite, to make some conversation, "May I know what do you do?" He said, "I'm studying science." She said, "Oh, I finished that in my 10th class." So you're not going to, you're not in the last year of engineering, maybe the course, but not the last year of engineering, because for your entire life, if you learn engineering, when you're dying after 100 years, okay? I'm not preponing it. I hope After so. after 100 years when you're dying, you would still know, if you are a constant learning process, you would still know you know very little about engineering. With that little, many things happen, that's different. So don't be in the last year of engineering. I know the program may be closing, but not the last year of engineering, okay? So, essentially engineering means to have things the way we want, yes? When we say this building is well engineered, I'm not saying that. If we say this building is well engineered or an automobile is well engineered, what it means is it's functioning the way we want, yes? Of all the pieces of engineering on this planet, of many pieces of engineering, a tree is a fantastic engineering, even a mountain is fantastic engineering because it stood there for 1,000,000 years. That means it must be good engineering, isn't it? Yes? Something that stands there for 1,000,000 years must be well engineered. Of all this, the most sophisticated piece of engineering is human mechanism, isn't it so? Hello? Most sophisticated of all the pieces of engineering. Now, because it's a sophisticated piece of engineering, it needs a certain level of attention, otherwise you don't figure it. Now that we gave you such a highly, high-tech piece of engineering, I'm asking you, did you read the user's manual? I think there is no user manual for now. How can they make such a fantastic piece of engineering without a user's manual? Maybe it doesn't come with a booklet attached to your neck when you were born. But indications must be there, isn't it, how to use it? Huh? Is it true somebody who's an athlete or a gymnast or someone else like that learns to use their body than a whole lot of other people? Yes? Obviously, at least one aspect of the physical engineering of the body, they seem to have read the user's manual about the physical aspects. Is it true certain people are able to use their mind better than others? Maybe they read another part of the user's manual. So now with this heart manual and the brain manual, see, the problem is most people are prejudiced against the brain. So this is a question or always comes to me, "Sadhguru, I want to meditate but thoughts are coming." The common question everywhere. I ask them, "See, I'll make you meditate. We will stop the liver, we'll stop the kidney, we'll stop the heart, we'll stop everything, okay?" "Oh, no, Sadhguru." So you want the liver to function when you're meditating, you want the kidneys to function, you want even the spleen to function, you want the heart to function, but you don't want your brain to function for some reason. This is simply because brain is a new equipment that you got in the evolutionary process. This level of cerebral development happened more recently compared to the other systems.
If you cut open any mammal, they all have all these parts, isn't it? Every part that you have here, all of them have. Even if you open a frog, most of you, your biology department. Even if you open a frog, almost everything that you have, he also has, isn't it? It is only… the big difference is only the cerebral development, which is a more recent happening. Because it's a more recent happening, most people have not figured how to handle it. So user's manual is very important. यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहते हैं कि जो बार-बार सद्गुरु जी एक बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वी गॉट द ब्रेन, द सेरेब्रल कैपेसिटी, इट्स अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमैनिटी और वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। वर्षा क्या बोलना चाहोगी? उम, मतलब कि क्या हम सच में ब्रेन को प्रॉपर्ली यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्रेन एक बहुत पावरफुल टूल हमें दे दिया गया है। आर वी रियली एक्चुअली यूटिलाइजिंग इट? एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि हम लोग सिर्फ़ अपना ब्रेन का सिर्फ़ 10% यूज़ करते हैं, बट ये बात सही नहीं है। हम लोग हुँ, अपना ब्रेन का सिर्फ़ 10% जब हम स्लीप करते हैं, जब सोते हैं, उस टाइम पे यूज़ करते हैं 10%। रेस्ट हमने पूरे एंटायर लाइफ़ में ब्रेन यूज़ किया करते हैं, बट क्या होता है वो लाइक कॉन्शियसली हम उसको नहीं यूज़ करने के कारण बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं देख पाते हैं। मतलब जो एक कहावत है कि हम मात्र वी आर यूजिंग 5%, 6%, हुँ, मैक्सिमम 10% ऑफ आवर ब्रेन, ये नहीं, एक्चुअली ये गलत है। they are wrong because we are using our brain, whatever neurons we have completely. हुँ, But और they ये mean to say, न्यूरॉन डेवलपमेंट जी। what they mean to say, as you are saying, कि हुँ, efficiency wise, it's only 10%. हुँ, 10% राइट। efficiency में ही यूज हो रहा है, अविनाश जी? हुँ, नहीं मतलब इन्होंने शायद पता नहीं, हम लोग को मतलब एक टाइम पे मोस्ट ऑफ द काम करने के लिए हम लोग कुछ पार्ट का यूज़ करते हैं, वहाँ से शायद आया है, बट हम लोग हर समय मल्टीपल पार्ट्स एंगेज्ड रखते हैं ब्रेन का, हम्म, जहाँ तक मतलब। और ये जो सद्गुरु अभी जो बोले ना, मतलब हम लोग को ब्रेन मिला है, हम इसी ब्रेन का पार्ट हैं, पॉइंट मतलब ये है। ये जो थॉट आ रहा है ना, वो आप इसी हम्म, ब्रेन के चलते सोच रहे हो। हम्म, तो आप समझ रहे हो मतलब हम लोग क्या मतलब हम लोग जब तक आपको ज्ञान ना दिया जाए ना, तब तक हम्म, एज़ ए नेचुरल बीइंग यू विल और मतलब हम लोग अपने बॉडी को मतलब हम लोग इस पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में समझने लगते हैं यही मैं हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोज़ और साइ-फाई देखा होगा कि लोगों ने अपना ये पार्ट कट कर दिया और सिर्फ़ इसी को ह्यूमन मान रहे हो। हम्म, सो इट्स अ थिंग दैट वी हैव लाइक जस्ट दोनों चीज़ है। ब्रेन को हम लोग जो बोले ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिए हैं। मेरा ये हम्म, मानना है, समझना भी यही है। ब्रेन जस्ट एक नॉलेज का इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडर है। बाकी जो हार्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सद्गुरु से डिसएग्री करूँगा। मेरे को ये जो फीलिंग और समझ है कि हम लोग जो फूड खाते हैं, हमारा जो लिविंग बॉडी है, दिस इज़ हम्म, आल्सो अ बिट इंटेलिजेंट और वो भी अपने हम्म, इंटेलिजेंट को इस थ्रू एंड थ्रू इस बॉडी को किसी न किसी फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा है। हम्म, तो जो गट फीलिंग होता है या फिर मुझे पता है, पता है वो इसलिए कि समहाउ जो यूनिवर्सल कनेक्शन है वो शायद से हमारे खाने से ही आता है बिकॉज़ दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड टू दिस होल वर्ल्ड। हम्म, नहीं बट तो एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट मैं एक चीज़ हुँ, बोलना चाहूँगी कि हुँ, लाइक ब्रेन और हार्ट के बीच में एक जो कनेक्शन है, जो एक नर्व हुँ, है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं। तो हुँ, अगर कुछ भी अगर हार्ट को करना है, तो वो वहाँ से हुँ, ट्रैवल करता है इन्फॉर्मेशन हुँ, कि भई तुम अभी इतना पंप करो, इतना ब्लड दो, इसको इतनी की ज़रूरत है। तो हार्ट का बेसिकली एक ही काम है पंपिंग, नथिंग एल्स। सारा मैं कुछ थॉट, इन्फॉर्मेशन सब कुछ ब्रेन से ही आ रहा है। उसमें 2 चीज़ है, एक थॉट है, एक इमोशंस है। तो ये थॉट और इमोशंस का जो लोगों में ऐसा आ गया है कि इमोशंस जो रिलेटेड है हार्ट से है और थॉट जो रिलेटेड है वो ब्रेन से है।
इसीलिए शायद डिवाइड कर दिया है कि हार्ट कुछ बोल रहा है, ब्रेन कुछ बोल रहा है। बट सब कुछ ही ब्रेन से ही आ रहा है। ब्रेन में बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स हैं जिसका अलग-अलग काम है। तो डीप में अगर नहीं भी जाऊँ तो भी इन शॉर्ट जो ब्रेन्स के अलग पार्ट का अलग काम, जैसे बोलते हैं ना कि राइट साइड जिसका एक्टिव है तो वो पर्टिकुलरली इस काम में अच्छा है, लेफ्ट वाला ब्रेन अगर एक्टिव है तो इस काम में अच्छा है। तो सेम गोज़ कि ब्रेन में ही थॉट्स भी है और इमोशंस भी है। हार्ट सिर्फ हुँ, पंप कर रहा है। और मैं हार्ट और एक चीज़ बोलूँगी मैं कि हार्ट जो है हम लोग जस्ट 4 वीक्स के होते हैं, जब डेवलपमेंट चल रहा है, मम्मी के पेट में है, 4 वीक के है, तब से हार्ट का फर्स्ट सेल काम करना चालू करता है। हुँ। तो इसीलिए कभी भी सोनोग्राफी जब होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हार्ट बीट 4th वीक में देखी जाती है। फिर उसके बाद बाकी सब डेवलपमेंट चालू होता है। मेरा यहाँ पे ये पॉइंट था, मतलब मैं हार्ट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हार्ट के जस्ट नीचे हमारा पेट रहता है, हुँ, और हुँ। समहाउ पेट के वाइब्रेशंस को हम लोग हार्ट से मिसनोमर कर मतलब गलत समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ वी हैव अ जो हमारा हार्ट के पेट है जस्ट वो एक नीचे 1 मिनट बाबा, हार्ट के जस्ट नीचे मतलब हार्ट पैनक्रियाज़ के रहता है। आस-पास पेट है ना कहीं पे? इधर ही कहीं पेट है हार्ट ना? के नीचे पैनक्रियाज़ नहीं। और उसके नीचे पेट। हाँ, तो मैं हाँ, वही बोल रहा हूँ कि वर्षा? पेट का हम हाँ। हाँ बाबा बोलिए। हाँ, तो मैं पेट को बोल रहा हूँ, और जस्ट मतलब इस पर्सपेक्टिव से कि सिंस वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है हमारा पेट आउटसाइड से, मतलब वो एक नहीं, हम लोग जो आप जो खा बोल लिए रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गन का अपना खुद का ये रहता है, बट सारा इन्फॉर्मेशंस मगर बेसिकली आपका ब्रेन से ही आ रहा है। हाँ, मैं उस टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ब्रेन कुछ टाइप का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, बट पेट जो है वो केमिकल कंपोज़िशन के थ्रू और जो मतलब केमिस्ट्री के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन वो पेट ही कलेक्ट कर सकता है, एंड ड्यू टू दैट इट माइट नो कि ये मतलब, और हमारे केमिस्ट्री का लिमिटेशंस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है हम केमिस्ट्री के थ्रू, तो मतलब वहाँ से हमारा इंट्यूशन आता होगा समहाउ, मेरा मैं ये यहाँ पे थिंकिंग एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर हम पेट की बात करें, तो पेट से ज़्यादा काम इंटरैक्टिंग विद द फूड, वो इस हमारे लिवर इंटेस्टाइन कर रहे हैं। हाँ, वो सारा मैं इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव इन ट्रैक्ट का ही बात कर रहा हूँ। पेट हाँ, तो सारी अतड़ियाँ जो खाने से तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। पेट पेट एक्चुअली इट्स लाइक अ ग्राइंडर, उसके अलावा पेट कुछ कोई काम नहीं करता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। वर्षा तुम कर सक हाँ, इस एक बुक आपको रिकमेंड किया था ना मैंने, द बॉडी हुँ, समथिंग, हुँ। उसमें मैंने पढ़ा पेट में था सिर्फ कि मिक्स होता है और वो एक लिवर सिर्फ ग्राइंडर है कि फिजिकल। खाना जो गया उसको मिक्स करना है, एसिड उसका पीएच लेवल सब बैलेंस करता है वो। उसके बाद जो मेन एब्ज़ॉर्प्शन का काम है, वो शुरू वो होता है इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से, और जो एक्चुअल में होता है जो मेन काम वो लार्ज इंटेस्टाइन ये फिनिशिंग देता है। तो जितना भी कनेक्शन है ना बाबा, अगर हम ये माने कि उसका उस फूड का इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, वो हाँ, सारे तो के आप सारे हमारे गट गट बैक्टीरिया का काम है वो। इसलिए हाँ, गट बायोम बोलते हैं उसको। हाँ, बोलिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि पेट जो है पहला बार हमने कुछ भी खा लिया, पेट जो है उसको हमने जो भी खाया वो एक फॉर्म में खाया, फल खाया, सेब खाया, कुछ भी खाया। बट मैं हुँ, बोल रहा हूँ हुँ। कि पेट यहाँ से लेके हम लोग के बॉडी से बाहर निकलने मतलब गट और हुँ, स्टमक, ये हुँ, सारे इनपुट को केमिकली अंडरस्टैंड भी कर रहा है। और उस कारण से उसको एक एक्सपेरिमेंटल या स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि वो क्या हो रहा है, व्हिच आई थिंक शुड बी, अगर हम लोग का लेट्स से हमारे पेट की केमिस्ट्री लैब इतनी अच्छी है कि उसका हुँ, रिज़ॉल्यूशन मान लीजिए माइंड के लेवल का हो, तो शायद इधर से ज़्यादा भी कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से भी आता होगा कि हाउ व्हाट हुँ, वर्ल्ड वी लिव इन। हुँ। पता नहीं, मेरा ये थोड़ा-सा मतलब मैं इस पे बहुत, क्योंकि मैं फ़ील किया हूँ 2 थॉट आता है, पेट से एक अलग और इधर से एक अलग थोड़ा थॉट, मतलब जो भी है थॉट या इन्फॉर्मेशन सोर्सेज़, सॉरी। हाँ, वो बिल्कुल, इससे ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन एक मेन सर्वर है, जहाँ हुँ, पे बॉडी के हर एक पार्ट, मैं केवल गट हुँ, और इस पे क्यों जा रहे हैं, इवन हुँ। अगर हमारा नोज़, हम अगर बैड हाँ, स्मेल लेते हैं, तुरंत वो सिग्नल देता है कि जस्ट स्टे अवे हुँ, फ्रॉम हियर। तो यहाँ ये सब के सब इट्स लाइक पेरिफेरल डिवाइस हमारे कंप्यूटर में होता है ना, कि दे आर हुँ, टेकिंग इन्फॉर्मेशन एंड दे आर सेंडिंग इट टू ब्रेन। अब ब्रेन डिसाइड करता है मेन सुपर कंप्यूटर की तरह कि व्हाट यस, डिसीजन यू हैव टू टेक। इन द सेम वे जो गट भी है, इट इज टेकिंग हुँ, इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द फूड, कि भाई हुँ, ये फूड आया है हमारे बॉडी में, हमारे हमारे बॉडी की कंडीशन ये है, ये फूड सही नहीं है,
आई एम गोइंग टू क्रिएट इंडाइजेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जा रहा है। तो इस टाइप से वो दे आर ऑल कलेक्टर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक वेव क्रॉलर। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पर ओवरऑल जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो हमारे हुँ। ब्रेन का ही है। और जहाँ तक वर्षा अभी तुम बोल रही थी ना कि हार्ट का काम इमोशंस का नहीं है, आई टोटली हुँ, एग्री। एक एक ट्रांसप्लांट होता है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट भी, जिसमें हम लोग कोई हुँ, मशीन हुँ, के थ्रू हम लोग करते हैं, हार्ट वहाँ हुँ, काम करना बंद कर देता है, वो मशीन ही पंप करवाता है, ऐसा भी कुछ है ना राइट। प्रोसेस। वो हुँ, नहीं हुँ। जो इम्पल्स देते हैं, वो नहीं। एक होता नहीं, है कि मैं हम समझ पूरा का पूरा बॉडी ही ऑलमोस्ट कोमा में बॉडी चला गया है, बाहर उसका हार्ट कर रहा है, स्टिल दैट पर्सन कैन फील इमोशनली। उसके बाद हार्ट नहीं है, स्टिल ही और शी कैन फील द थिंग्स इमोशनली। इसका मतलब है कि जो लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि वी आर हमारा हार्ट इमोशंस को क्रिएट कर रहा है, ऐसा है नहीं। जो ये देखो। चीज़ बोली है ना प्रशांत अभी आपने कि इस पे हुँ, रिसेंटली एक स्टडी हुई थी कि हुँ, जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था तो ऑपरेशन थिएटर में यही चीज़ प्रूव करने के लिए कि भई इमोशंस का काम ब्रेन भी इमोशंस का काम करता है। ब्रेन भी नहीं, ब्रेन ही इमोशंस बस का काम करता वही है। हर ये चीज़ क्रिएट कर रहा है। हाँ जी, तो ये उसके ऊपर एक स्टडी हुई थी, तो ऑपरेशन थिएटर में जब हार्ट निकाला गया था, उस टाइम पे म्यूज़िक चल रहा था। जो वो पेशेंट हुँ, को वो म्यूज़िक बहुत वो उससे अटैच था, वही वाला पर्टिकुलरली म्यूज़िक चलाया गया था। तो पेशेंट वहाँ पे उस चीज़ पे रिस्पॉन्स किया है। तो उस पे हुँ, वो किसी ने एक थीसिस बनाया था, तो ये स्टडी मैंने पढ़ा था। अच्छा। चलिए आगे देखते हैं, अविनाश जी। हाँ, मतलब मैं मतलब अगेन आई एम अगेंस्ट ब्रेन, तो मैं यहाँ पे जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया ना नाक अगेंस्ट कान का, ब्रेन क्यों अगेंस्ट हाँ, ब्रेन? मतलब मैं ब्रेन को ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दे दिया जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं आप किसी का नाक हटा दूँ, तो ब्रेन का एक डायमेंशन कट जाएगा। हम लोग नाक का इम्पोर्टेंस भी ब्रेन को देते हैं, आँख का इम्पोर्टेंस भी ब्रेन को देते हैं, कान का क्योंकि इम्पोर्टेंस भी क्योंकि ब्रेन बिना को। बिना आँख का भी, बिना नाक का भी मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। आप मेरे टंग काट दीजिए, फिर मैं ज़िंदा रहूँगा। मेरा हाथ काट दीजिए, फिर भी ज़िंदा रहूँगा। मेरा ब्रेन का एक पोर्शन उड़ा दीजिए, आई मे डाई। अरे उस टाइप से तो देखिए क्रिटिकैलिटी के लिए वो हो सकता है तो कि भाई, कोई-कोई ऐसे तो नस होते हैं वो मतलब जिसको काट तो दे तो आदमी इम्पोर्टेंस, खत्म हो जाए। नहीं, 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 तो इम्पोर्टेंस वाइज़ तो वही आ रहा है ना। देखिए, नस भी मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो अगर देखा जाए, तो आपका जो एक्लिस जो वेन होता है वर्षा, पैर में, अगर मैं हुँ, रास्ते में कोई वो काट फट दे मेरा, तो मेरा बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ लूजिंग ब्लड, अब वो मेरा डेथ हो हुँ, जाएगा, वो अलग चीज़ है। पर अगर मैं वेल कंडीशन मेडिकल फैसिलिटी में अगर मेरे पे ऑपरेट किया जाए, अगर पैर हुँ, भी काट दे, हाथ भी काट दे, प्रॉपर कि मेरा ब्लड लॉस को रोका जाए, प्रॉपर, हुँ। तब भी इंसान जिंदा रहता है। यार, अब बहुत से पेशेंट, आप ही ने बताया ना कि ब्रेन बॉडी ऊपर अलाइव है, बाकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गया। तो ब्रेन ही है ना जो बचा हाँ, के रखा है। नहीं एक्सक्यूज़ मी, नहीं, मैं हेलो ये बोल रहा हुँ। हूँ, ये यहाँ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का यूनिट है। इट इज़ नॉट द यूनिट व्हिच कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन, और हमारे हाँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की यूनिट पेट भी है, मैं ये बोल रहा हूँ। और हाँ, इसीलिए वही तो बोला कि उसको दे आर पेरिफेरल डिवाइस, पेट दे आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। हाँ, वर्षा क्या नहीं, बोली? हाँ, और प्रशांत तुम अभी बोले ना कि ब्रेन अगर बंद हो गया तो सब बंद हो सकता है, सब बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट जब कोमा में जाता है, सब कुछ चल रहा होता है, जब ब्रेन बंद रहता है। नहीं, 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 मैं लाइव अलाइव की बात कर रहा हूँ। और ब्रेन जिस समय कोमा में रहता है, उसमें ब्रेन बंद तो नहीं होता। बंद नहीं होता बट उसके सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। सिग्नल्स टू मूव, शायद वो बंद होता होगा ना। अदरवाइज़ बाकी फंक्शनैलिटी के लिए जो ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है, वो तो यूज़ हो ही रहा होगा ना। नहीं, नहीं, बंद हो जाता है। पूरा ए टू जेड शटडाउन। हाँ जी, शटडाउन होता है, तभी पेशेंट कोमा में चले जाता है। इसीलिए उस टाइम पे वेंटिलेटर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि 2 चीज़ है, वेंटिलेटर 2 कंडीशन में लगाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे कंडीशन हैं, जो बेसिक 2 चीज़ है, जो लोगों को समझ में आती है ग्रॉसली कि जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है या फिर ब्रेन अगर शटडाउन हो जाता है, तो इस 2 कंडीशन में वेंटिलेटर लगाया जाता है। तो हुँ। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जिन लोगों को कुछ हेड इंजरी वगैरह होती है, तो उन लोगों को वेंटिलेटर पे रख के वो पेशेंट रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, वापस से वापस आ जाने के चांसेस रहते हैं, हुँ। एज़ कंपेयर टू अच्छा, हुँ, और इसी पे मैं वर्षा जी जो बोली उसी पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी यूएस का जो इलेक्शन है उसमें एक आरएफके जूनियर, एक कैनेडी फैमिली का कोई एक मेंबर है, हुँ, जिसका हुँ। ब्रेन का एक पार्ट कट करके हटाया गया क्योंकि उसको पैरासाइट से ईट कर लिया था, बट दैट गाय हैज़न्ट चेंज्ड मच। वो वैसा ही जैसा था हुँ, रंगीन वैसा ही रंगीन है। शायद हाँ, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेन का कोई पार्ट हटा दिया जाए तो वो मर जाएगा। लेकिन हुँ, बोल रहा हूँ कि कुछ फंक्शनैलिटी वो खो देगा तुरंत।
हाँ, और कुछ तो आप फिर ब्रेन का एक तो जो सेंटर होता है, वो जो मेनली आपका स्पाइन से जुड़ा हुआ जो है, वो सेरेब्रम। सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। नाम नाम मुझको प्रॉपर नहीं पता उसका। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंजर्ड हो गया या वो डैमेज्ड हो गया या उसको रिमूव कर दिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली द मैन और वुमन विल डाई। इस पे फिर अगेन पता नहीं मैं क्यों कंटेस्ट, मतलब मैं ब्रेन को नहीं, मैं भी जो एक नर्व इंजरी से गुजरा हूँ, मेरा सिर्फ एक हुँ, नर्व गया था और मेरा पूरा का पूरा लोअर बॉडी पैरालाइज था। मैं हुँ, कुछ नहीं दैट कर इज़ पा रहा डिफरेंट था, थिंग। मेरा ब्रेन पूरा जिंदा था, कुछ सिग्नल जो डालना चाह रहा था मैं पूरा क्योंकि वो मेडिटेशन नर्व ध्यान सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उस नर्व के थ्रू ही ब्रेन सिग्नल दे रहा है। अब वो न आपने तार काट दिया, तो ये तो वही वाली वही बोल बात रहा हो हूँ गई कि ना सब बाबा कि कुछ मैंने इम्पोर्टेंट इंटरनेट है, ये समझा देखिए रहा हूँ। जैसे मैंने इंटरनेट मेरा वाई-फाई लगा हुआ है, ठीक है? एक तार के थ्रू जियो के सर्वर में जा रहा है। अब बीच में किसी ने तार काट दिया, तो कहने को बोलेंगे कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो तार ही है, जो लेके आ रहा है। बट वो सर्वर इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता है। दैट सर्वर इज़ द मोस्ट सर्वर भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ, तो सर्वर इज़ सर्वर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अब वो मुझे वायर की ज़रूरत नहीं है, एयर के थ्रू आ रहा है मेरा, एयर वाई-फाई। तो उसका माने सर्वर स्टिल देयर, सर्वर अभी भी है, लेकिन वो वायर गायब हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए वैसे देखा जाए तो कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ चाहिए मेरे को, इवन नेल्स तक चाहिए। वो तो बात ही छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंस वाइज़ तो सब चीज़ है। लेकिन अगर नहीं, नहीं। हायरार्की अगर देखा जाए, तो कुछ हायरार्की में आगे-पीछे कुछ चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं आगे सद्गुरु जी क्या बोलते हैं आगे, ठीक है? You don't read a user's manual just before you discard the machine. You read it in the first few days, isn't it? Hello? If you buy a phone, do you want to read the user's manual in the first 3 days or after 3 years when you're throwing it away? First 3 days, isn't it? So, knowing how this functions is very important. Never did ever heart generate any thought or intention. Well, when you looked at the young girl, heart beat more. That doesn't mean it's saying anything, it's just trying to compensate for the other levels of excitement that's happening. The heart is not trying to say anything, it is only compensating, you need more blood, so it's pumping little harder. That'll happen even if you run up the staircase. Yes? What happens to you little panting when you fall in love also happens physiologically when you run up a staircase, yes or no? Fear also does that to a whole lot of people. So, heart is not trying to say anything, it is just trying to make sure every part of the body gets the nourishment of blood flow. यहाँ पे जो फ़ियर वाला जो बोले, डेफ़िनेटली जब हम लोग डरते हैं तो हार्ट पंप बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। सिंपली कह सकते हैं कि हार्ट पैसिवली काम करता है। व्हाट सिग्नल हैज़ बीन सेंट टू इट, अब बोलता है कि अच्छा बॉडी कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, पैनिक हो रहा है, ब्लड मूवमेंट बढ़ाओ, ब्रेन ने ऑर्डर किया, तो उसने बस पंप करना तेज़ कर दिया। बहुत हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल यही होता होगा। वो रिस्पॉन्डर है, रिसीवर नहीं है वो, रिस्पॉन्डर है वो। सिग्नल कहीं और से आया, है कि नहीं? तभी आई एम अफ्रेड, हार्ट बीट बढ़ गया। आई एम कूल डाउन, आई एम इन मेडिटेटिव फॉर्म, देन माय हार्ट बीट इज़ लो। बस वही वाली बात है। हाँ, So, it's your brain speaking in different tongues. What's your native language? What's your mother tongue? My Assamese. So, because when you know 2, 3 languages, sometimes it gets confused, sometimes it speaks in English, sometimes in Assamese, sometimes in something else. So you're thinking different people are speaking, heart is speaking, mind is speaking, no. There is thought and there is emotion. People think these two things are saying different things. They're not saying different things. The way you think is the way you emote, isn't it so? Right now, if I think, oh, she's the most wonderful person on the planet, I just have to think. Then my emotions become sweet towards her. Now I think she's the most horrible creature on the planet. Now my emotions become nasty. Yes or no?
I cannot think she's horrible and have sweet emotions. I cannot think she's wonderful and have nasty emotions, isn't it so? But today, I thought she's the most wonderful person and my sweetness was flowing. Suddenly she did something tomorrow that I don't like. I think she's horrible. Thought is agile, it changes direction just like that. Emotion is little sappy. It takes time to turn around. So that period, you struggle as if there are two dimensions of thing happening. Because thought is saying one thing, emotion is still going sweet because it takes time to become nasty. Everybody struggles, but it मैं catches up or no after some time. Hello? हाँ बा मैं यहाँ पे एक चीज फिर से जो अभी सदगुरु बोले ना, थॉट को फिर अगेन हम लोग लॉजिक से करते हैं, इमोशन को एक इंट्यूटिव थॉट। तो मैं अगेन यही बोलूंगा कि फिर से लोग ब्रेन को ज्यादा दे रहे हैं। अदरवाइज द थॉट दैट आवर बॉडी नीड्स द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ये कहीं और से नहीं आता कि कहीं एक ट्रुथ है, तो हम लोग का दिमाग से तो बाहर से देखने से कहीं ट्रुथ दिखता नहीं है, बट ये इंट्यूशन आता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारा पेट अगर खाना खाता है तो उसको तो सत्य पता है, हम कुछ भी जान रहे हो, वो फल क्या चीज का है वो। तो मेरा ये है कि इंट्यूशन का सबसे मतलब जो अगर लोग थॉट्स और इमोशंस का लड़ाई लेके चलते हैं ना, और हमेशा थॉट्स को वो देते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रायोरिटी। एडवांटेज कि लूसिड है, फास्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि द प्राइमरी इमोशन दैट वी क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, उसी पे पूरा थॉट है। तो मतलब ये थॉट वहां पे लेके जा रहा है। तो मेरा ये अगेन कहना है कि हमारा गट जो है वो ट्रुथ देख चुका है, क्योंकि वो ट्रुथ से डेली इंटरेक्ट करता है। हमारा आंख और दिमाग जो है ट्रुथ को समझने का कोशिश करता है। तो यही सत्य जब इधर भी समझ में आ जाएगा तो हमारा दिल और दिमाग शायद एक साथ हो जाएगा। मेरा पता नहीं, ऐसा सोच इस पे बस फिर ये दिल बोलना क्यों है। बोल रहे हैं फिर? बोले गट और दिमाग दिल एक क्योंकि जैसे सब हो लोग जाएंगे। बोलते हैं, बट ये दिल नहीं मैं बोल रहा हूँ, गट और बॉड मतलब एक केमिकल स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे जो लगा हुआ है पेट में, और ये जो है मतलब स्पेस मतलब जो ऑप्टिकल और एकूस्टिक स्पेक्ट्रोमीटर कान और आंख नाक बोल दीजिए, और ये देखिए एकदम फुल मास मैं स्पेक्ट्रोमीटर। मैं सोचा था कि इस बारे में बाद में कमेंट दूंगा एंड में, लेकिन अभी चलिए बीच में बोल देता हूँ मैं कि रिसर्च हुए हैं बहुत सारे इस पे, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि आवर गट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रेन, और कह सकते हैं कि इट्स एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन, और वी कैन से इट्स अ सेकंड ब्रेन व्हिच इज रिसाइडिंग इनसाइड आवर बॉडी। उसका अपना एक इकोसिस्टम है, उसका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो हर चीजों को फील करता है, हर चीजों पे रिस्पॉन्स करता है। इसलिए जो एक कहावत बहुत पुरानी है ना कि मेरा गट फीलिंग ये है, या मेरा गट्स ये कह रहा है, मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना। तो क्या है कि वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे ब्रेन में तितलियां उड़ रही हैं, पेट में, पेट इन द सेंस द इंटेस्टाइन एरिया। पेट तो वो छोटा सा पोर्शन है हमारे बॉडी का। हाँ, पूरा जो नीचे केमिकल वाला पार्ट, इतना डायरेक्टली फूड से इंटरेक्ट कर रहा है जो पार्ट। फीस्ट का साइज होता है पेट का, स्टमक का, इससे ज्यादा नहीं होता। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारा जो गट का इकोसिस्टम है, दैट वर्क्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन और एज ए सेकंड ब्रेन व्हिच इज हाईली सिंक्रोनाइज्ड विद आवर प्राइमरी ब्रेन। तब वो आदमी का लॉजिक और इमोशंस बहुत ही अमेजिंगली काम करता है, इफ हिज और हर गट ब्रेन इज हाईली सिंक्रोनाइज्ड विद द लॉजिकल ब्रेन। मैं अगर कुछ देर के लिए बांट दूं कि दिस इज लॉजिकल ब्रेन, स्टिल आई डोंट नो दैट मच कि लॉजिक कहाँ पर है, रैशनल थिंकिंग कहाँ पर है, इरेशनल थिंकिंग कहाँ पर है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट पॉइंट, बट स्टिल आई विल से कि अगर हमारा गट ब्रेन और हमारा जो ये हेड ब्रेन है, इसको इस तरह इन शब्दों में बोलना चाहूंगा, इफ दे आर हाईली सिंक्रोनाइज्ड, दैट पर्सन्स थिंकिंग कैपेबिलिटी, दैट पर्सन्स फॉर साइटेडनेस होता है ना कि आगे का सोच लेना, चीजें दिखना, वो बढ़ जाता है। इसको हाँ, कहते हैं इंट्यूटिव ब्रेन, कि लोग दूरदर्शन। लोग कंफ्यूज्ड है कि हाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग इन सच अ वे, हाउ डज ही नो, बस उसे खुद नहीं पता होता। उसका गट्स बोला, उसने किया। अब सवाल यही था जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना कि हम लोग इमोशनली थॉट पे जाएं कि लॉजिकल थॉट पे जाएं। तो इमोशनल थॉट एक गलत गलत शब्द यूज किया जा रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में होना चाहिए था गट थॉट, कि दिल की सुने कि दिमाग की। तो दिल वाला एक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब
जो इरेशनल गट थॉट जिसके पीछे मेरे पास लॉजिक नहीं है। फॉर एग्जांपल आई एम लाइकिंग सम पर्सन, अब अगर आप मुझसे ये पूछ दीजिए व्हाई, तो आइदर आई विल एक्सप्लेन कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज कैलकुलेटिव थिंग कि आई एम कैलकुलेटिंग व्हाई आई एम लाइकिंग दैट पर्सन। इट्स अ लॉजिकल एस्पेक्ट कि मैंने हर चीज कैलकुलेट करके मेरे बेनिफिट में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई सेड कि आई लाइक दैट पर्सन लॉजिकली। बट एक सेकंड एस्पेक्ट और होता है कि भाई तुझे क्या पसंद आ रहा है उसमें? तो वो आदमी बोलता है या इंसान बोलता है, लड़का लड़की जो भी हो, आई डोंट नो, बट माय गट फीलिंग, माय इंट्यूशन इज सेइंग दैट ओके आई एम लाइकिंग दैट पर्सन। What's the logic? I don't know the logic. But there is some butterfly which is saying, okay, he is good, yeah, or she is good, whatever. मेरा इसी पे So, मैं ऐड करना चाहूंगा, hmm, मतलब जो अगेन कि जो लोग थॉट्स और इमोशन में थॉट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो कमिंग बैक टू कि कबीर ने एक सेंटेंस बोला था, शायद कबीर या कोई बड़े दार्शनिक ने, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मतलब आपने जब अपने गट का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, और मतलब लव उसका सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल होता है जहां पे आपका लॉजिक दिख जाता है कि वो नहीं सही है और आप उसके hmm. अगेंस्ट जाते हो, क्योंकि आपने अगर जो Hmm. किया वही सत्य है और वही सही है, तो उस समय लॉजिक गलत था। तो प्रेम उसका बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल है टू सी कि भाई किसी को भी किसी से भी प्रेम हो सकता है। तो वही है कि मतलब वो, मतलब कि थॉट्स और ब्रेन को इतना लोग, जो अगेन कि ब्रेन को इतना इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। Just- नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मेरे नजर में कोई इंपॉर्टेंस और कोई किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को नहीं देना, मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा, दोज नहीं नहीं थिंग्स, नहीं, मैं यहाँ पे एवरीथिंग्स वर्क्स एज ए टूल फॉर मी। मुझे उसको यूज नहीं करना नहीं है नहीं, फॉर माई बेटरमेंट, दैट्स ऑल। मैं ब्रेन को इम्पोर्टेंस देने का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था कि जो मैंने सीखा है वो ये ब्रेन ने सीखा है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया कि मैंने जो सीखा मैं बहुत अलग हो गया। नहीं, पेट सबका सेम है, हम लोग बराबर है। तो फिर बी लेकिन हम्बल, इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमिलिटी इंटेलिजेंस का। लेकिन बट इंटेलिजेंस वाइज हम सब बराबर नहीं है, ये रियलिटी है। बट ट्रूथ के, जो ट्रूथ है उसके सामान हम लोग इक्वल है, मतलब तो ट्रूथ एक ट्रूथ ही होगा सबके कितने लिए। लोग जान रहे हैं? अदरवाइज देखा जाए तो हम सभी इस नेचर क्रिएशन है, तो वी आर यस, ऑलरेडी इक्वल। मैं इक्वालिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट मैं जैसे फॉर ह्यूमिलिटी बोल रहा हूँ, एग्जांपल मैं अगर इक्वल नहीं बोल रहा हूँ। मैं हम्बल होने का रीजन ये दे रहा हूँ कि तुम, दैट इज हमारा टोटली पेट डिफरेंट थिंग। मोर आप वो इंटेलिजेंट इंसान, है शायद हमारे दिमाग से। वो हम्बल है नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। वर्षा कुछ बोलना चाहोगे इस नहीं, पे? आ, वही कि गट फीलिंग तो होती है डेफिनेटली, बट ब्रेन का अपना इम्पोर्टेंस है। और और जानते हैं अविनाश जी, हाँ बोलो। मेरे नज़र में ब्रेन से ही सिग्नल आ रहे हैं, और डेफिनेटली गट में कुछ ऐसा है कि वो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं। हम्म। और सिक्स सेंस, अब मेडिकल साइंस भी बिलीव करने लगा है इस बात पे कि यह सिक्स सेंस कुछ होता है, तभी गट पे इतना रिसर्च हुआ है। और अविनाश जी एक चीज और बोलता हूँ मैं, जो आप बोल हम्म, रहे हैं ना कि लॉजिकल थिंकिंग और एक इंट्यूटिव थिंकिंग, जो कहते हैं ना हम्म, आईक्यू हम्म, टेस्ट इज कंप्लीटली हम्म, कंप्लीटली चेकिंग फॉर लॉजिकल थॉट्स, लॉजिकल okay, ब्रेन, लॉजिकल साइड ऑफ ब्रेन। और जो ईक्यू होता है, इमोशनल, हम्म, वो कंप्लीटली आपका इंट्यूशन पे चलता है कि वो उस इंसान का ईक्यू कितना बैलेंस्ड है, मतलब वो हम्म, इमोशनली कितना सोच सकता है। उसको लॉजिक नहीं पता, उसको जस्ट इमेजिन कीजिए कि इंसान है, उसका ईक्यू केवल बेटर है ना, उसने जिंदगी में कोई हम्म, मैथ्स नहीं पढ़ा, कोई साइंस नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, स्टिल वो पर्सन बहुत बेटर ढंग से इस दुनिया में सर्वाइव करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और हैप्पीली रहेगा। और ऐसे हम हाँ, लोग हज़ारों लोग से हर रोज़ मिलते हैं, जो दे आर, हाँ, उनसे अगर बात कर लीजिएगा आपको मालूम पड़ेगा कि उनके पास नॉलेज या फिर कह सकते हैं एजुकेशन के नाम पे ई भी नहीं है उनके पास। बट स्टिल हाँ, तो मैं, दे आर वेरी, वेरी, वेरी वेल डूइंग इन देयर लाइफ, ठीक है? क्योंकि उनके पास हम्म, ईक्यू बैलेंस्ड है कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्टली वो इमोशनली कर रहे हाँ, मैं हैं। जी। इसी पे आना चाहूंगा कि अगर सत्य जानना ये है कि तुम खुश हो जाओगे, यू फील हैप्पी इफ द अल्टीमेट रियलिटी है ट्रूथ। सो वही हुँ, बोल रहा हूँ कि ब्रेन को हम लोग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन नॉलेज से हो सकता है आप ट्रूथ या हैप्पी ना हो, और भी चीजें आपको हैप्पीनेस समझा, मतलब मैं
ये बता रहा हूँ कि अगर हैप्पीनेस और मतलब टू गेट बिकम हैप्पी, इंटेलिजेंस इज नॉट द टूल। तो लोगों को अपने दिमाग या अपने नॉलेज को उतना इज्जत ना देने के अलावा कि वो ह्यूमन है, उस चीज को ज्यादा इज्जत दे। मेरे लिए पर्सनली हैप्पी होना लक्ष्य है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हैप्पी इतना छोटा सा चीज होना मैं लक्ष्य जिंदगी में लक्ष्य रहेगा? अरे हैप्पी तो मेजॉरिटी ऑफ बुद्ध द भी पीपल थे। का वही बुद्ध भी जब जब गौतम थे जब तक खुश तो वो भी थे। क्या कमी थी उनमें? खुश नहीं ये थे, चीज था तृप्त उनके नहीं थे। पास। तृप्ति अलग चीज है। हाँ खुशी भाई, की बात कर तृप्ति रहे लेवल हैं। का खुशी, मतलब तृप्ति लेवल की खुशी। जब तक आप खुश नहीं होगा तब तो तृप्ति की तरफ मूव कीजिएगा। आप बिना हम्म। आप ये खुशी का स्टेज बिना पार मैंने बिना टच किए आप तृप्त नहीं हो सकते। तो वो इंसान तो ऑलरेडी खुश था। वहीं से शायद तृप्त हो जाता एक दिन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हैप्पीनेस कोई हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। ये बहुत हैप्पीनेस बहुत छोटी चीज़ है। हैप्पीनेस तो इट्स लाइक ब्रीथिंग, ये तो मेरे पास रहना ही चाहिए हमेशा। एक बच्चा पैदा होता है, दैट चाइल्ड इज़ ऑलरेडी हैप्पी। आप ज़रा 2 साल 3 साल के बच्चों को देखिए ज़रा, हाँ उनसे तो वही पूछिए बोल कि रहा हूँ, आर दे अनहैप्पी? नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों में भगवान है। आपको द मोमेंट यू रियलाइज हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, यू आर हुँ। इनलाइटेंड। आप अपने लाइफ का गोल कंप्लीट कर लिए। योर लाइफ गोल वाज टू बिकम ऑल द टाइम हैप्पी। उसके बाद आप काम कीजिए। लाइक आप अगर खुश रहोगे तो आप कुछ भी अ अच्छा ही करोगे। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि हैप्पीनेस मेरा पर्सनल व्यू है कि हैप्पीनेस कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ 2-3 साल 4 साल के बच्चे उनसे पूछिए आर यू हैप्पी? अगर उनको कोई चीज़ के कारण नाराज़ नहीं है अगर वो घर में, दे आर ऑलवेज़ हैप्पी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनलाइटेंड हो गए हैं। इस बात को समझिए। नहीं, नहीं, मैं ये हैप्पीनेस बोल तो रहा हूँ, एक 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 बेसिक सेइंग है नेचर है कि हमारा। वही बेसिक नेचर आप भूल जाते हो और उसी को रिगेन करना एनलाइटनमेंट कहते हैं। आपको कुछ तो नया भाई नहीं वो पता चलेगा। बच्चा एनलाइटेंड क्यों नहीं है उस समय? क्वेश्चन ये है। क्योंकि अभी उसमें एनलाइटेंड इसलिए भगवान का रूप बोलते हैं क्योंकि वो अभी अरे जैसे भगवान उसके भगवान छोड़ सेंसेस दीजिए। फ्लड होंगे। ज़रूरी मतलब थोड़ी एक ना कि जस्ट एक सेइंग एनलाइटमेंट। बोल रहा हूँ, मैं एक सेइंग बोल रहा हूँ कि समझिए वो इमोशन आप वहां पे भी देख सकते हो बिकॉज वो टार्निश नहीं हुआ उसका इंटेलिजेंस ईगो से। उसके बाद आपको यही ईगो जमा होगा, उसके बाद फिर से हैप्पीनेस ढूंढोगे और कुछ नहीं। मतलब इफ यू कैन बी हैप्पी, मतलब अदरवाइज हम किसी के पास जाते ही हैं कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को खुशी चाहिए। दर्द से छुटकारा खुशी की रास्ता, यही हमारा परस्यूट है हमेशा। चाहे वो किसी को दिखा के, किसी के सामने मैं दिखाया कि मैंने ये पैसा इतना बना लिया अकाउंट में, उसका खुशी। बट एवरीवन इज ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस। उसके अलावा लाइफ में कोई गोल नहीं है किसी का। उसके बाद आपको द मोमेंट आपका हैप्पीनेस आ जाएगा, उसके बाद आप खुद ही पता चल जाएगा। वंस यू बिकम एनलाइटेंड यू आर एवर हैप्पी। उसके बाद फिर वही सदगुरु जैसा आप काम करते रहोगे, बाकी लोगों को हैप्पीनेस का ज्ञान देते रहोगे। अच्छा, कुछ कमेंट करना है वर्षा कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। हुँ। Today you thought she's wonderful, sweetness was flowing. Tomorrow she did something you don't like, you thought she's horrible. The thought is clearly saying she's horrible, but emotions are struggling because they can't turn quickly. They take time to turn. But after a week or 10 days or 2 months, depending on how deeply you're engaged, after some time, emotion catches up with the thought. Emotion also says, yes, she's horrible, so let's be nasty to her. So they're not speaking different languages. One is agile, another is little slow in its corners. So it looks like they're speaking different languages. When it comes to what you want to do, uh, you must think clearly, it's very important. Thinking clearly means the question is not about what will get me this, what will get me that. Is your life precious to you? All of you, I'm asking. Your life, is it precious to you? So before you invest this life into something, you must look whether today if I invest my life into this, after 25 years, will it still mean a lot to me? After 50 years, will it still mean a lot to me? At the end of my life, you turn back and look, will I be proud of this or will I be ashamed of what I'm doing right now? Doesn't matter what other people say. But you should not do anything that you will feel ashamed of, isn't it so? Huh? It doesn't matter, people say so many things. Everybody has an opinion, it's their business. But you don't do something that you will feel ashamed of, isn't it? Then you're turning against yourself. Somebody turns against you, you can leave them and go somewhere else. If you turn against yourself, you'll have to live with it forever.
So this is all you have to look at it. Something will get you money, something will get you comfort, that's not the point. What you choose to do, will it give you a life? When I say give you a life, are you just trying to make a living or are you trying to make a life out of this? It's important. Making a living is not an issue. A worm, an insect, a bird, an animal, all of them are making their life, making a living, isn't it so? They're even making a life out of it, but definitely they're making a living. So making a living with such a big brain is not an issue. Earning your food is not an issue, making a living is not an issue. Only problem is you want to live like somebody else, that's an endless problem. I want to live is not a problem. I want to live like you, this is a problem. So, it is important, if you consider your life as a precious life, you must make sure you make a wonderful life out of this. Whatever opens up in that direction, that is the thing you should do. But when you're under the pressure of peers, somebody is saying, I'm going to America, somebody says, I'm going to the government job, somebody says, I'm doing this. So one thing that all of you should do before you make big decisions in your life is withdraw from these pressures of peers, professors, parents, everybody. Just spend 3 days to 1 week by yourself. Look at it, what is it that you really want to do? Not under pressure from other people. What does this life want to do? Do that. It doesn't matter what other people think about it. हाँ, तो ये चीज यहाँ पर, ये जो एंड में हो रहा है अब, इसके बारे में बोलिए। जो बोल रहे हैं कि वी डोंट नीड टू फॉलो व्हाट द सोसाइटी इज सेइंग, व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग, व्हाट कॉलीग्स आर सेइंग, जस्ट फॉलो व्हाट यू मैं वांट। बट अगेन यही मतलब देखिए, फॉलो व्हाट यू वांट बोलना बहुत आसान है, बट अगेन द सेकंड क्वेश्चन कट व्हाट आई वांट, खुद को ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जब अब पता चल गया तो वही फॉलो करो, ये क्वेश्चन ये है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता, वही तो ग्रैंडेस्ट क्वेश्चन है कि करना क्या है, जिंदगी में पैदा क्यों हुए हैं, लाइक व्हाट टू डू, व्हाई वी आर अलाइव, यही तो क्वेश्चन है। और देन मतलब फिर अगेन कमिंग टू द गीता, तो जो आपने बोला ना पीयर प्रेशर, गीता का फर्स्ट चैप्टर जो अर्जुन विषाद योग, उसका यही है। ये सामने मेरे मतलब अगर आप उसको मेटाफोरिकली उस फर्स्ट चैप्टर को लो, तो ये चीज मेरे पापा ने सिखाया, ये मेरे दादा ने सिखाया, ये चाचा ने सिखाया, ये गुरु ने सिखाया, और आप बोल रहे हो सत्य कुछ और है जो मुझे समझ आया। तो कृष्ण जी यही बोलते हैं कि तुमने जो भी सीखा है वो सीख से तुमको सत्य का लड़ना होगा। तो वही है कि फिर सत्य क्या है, क्या मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तो फिर उसका सबसे क्लियरेस्ट चीज है, जो क्लियरेस्ट आपको सबको दिखता है, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। तो फर्स्ट है कि हैप्पी, अब देन अगेन क्वेश्चन कम्स व्हाट इज हैप्पीनेस। फिर आपको फिर डिस्टिंग्विश करना होगा कि आपको प्लेजर से और रिमूव करके, कि फिर आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस कैन बी फ्रॉम विद इन, आप हमेशा हैप्पी हो सकते हो। मतलब अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग, मैं भी जस्ट एक सेंटेंस बोलूंगा, देखिएगा हम लोग हैप्पी हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि आप बिना कुछ बोले अपने आप को स्माइल कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिएगा आप स्माइल कर सकते हो। अब बस सोचिए कि आप स्माइल कर रहे हो, अपने आप को इमेजिन कीजिए आप स्माइल कर रहे हो। तो इट्स दैट इजी। एंड अगेन व्हाई वी आर अलाइव, टू बी हैप्पी एक है, या फिर सत्य जानना है, जो भी है। तो व्हाट डू यू वांट में बहुत डाउट हो जाता है, मतलब बोलना बहुत आसान है मेरा ये कहना। वर्षा, व्हाट्स द कमेंट? कि क्वेश्चन समझ में आया मेरा कि हमें पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इससे थोड़ा सा अपने आप को बैक ऑफ करना चाहिए। एज सदगुरु सेड कि थोड़ा सा बैकअप करके आप 2-3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर अपने आप को एनालाइज करो, देन यू विल गेट whatever रिस्पॉन्स यू विल गेट, उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्या बोलते हो? ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो अगर उस पाथ पे हम जाते हैं तो काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बट स्टिल फॉर लॉन्ग टर्म ये आपको बेनिफिट देगा, लाइक यू विल गेट द हैप्पीनेस। अगर आप किसी के प्रेशर के अंडर में आके अगर वो कुछ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक जॉब की बात करते हैं,
हुँ, कि किसी को एक जॉब में उसने प्लेसमेंट लिया, वो भी उसके पेरेंट्स ने बोला था इसीलिए, और वो हुँ, बंदे की या वो बंदे की इच्छा नहीं है कि मैं ये काम करूँ करके। तो वो इनिशियली सॉरी वो इनिशियली उसको अच्छा लगेगा क्योंकि अकाउंट में पैसे आएँगे एंड पेरेंट्स वगैरह खुश रहेंगे। बट लॉन्ग टर्म में वो एक लिमिट में जाके फ्रस्ट्रेशन में डेवलप हो जाता है। तो हुँ। ना वो काम ठीक से कर पाएगा, ना वो हैप्पीनेस अल्टीमेटली, जो अविनाश जी बोल रहे थे कि हैप्पीनेस चाहिए होती है, तो वो हैप्पीनेस फिर कहाँ चले जाएगी? हैप्पीनेस तो आएगी ही नहीं। अच्छा, इस पे मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। आप लोगों ने क्या एक बात सोचा कि सवाल था कि हमें लॉजिकल थिंकिंग पे जाना है कि गट थिंकिंग पे जाना है? मतलब दिल की सुने कि दिमाग की सुने? हुँ, चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और उसी कॉन्टेक्स्ट में सद्गुरु एक्सप्लेन कर रहे थे और हुँ, खत्म होते-होते जो ये एक फिनिशिंग जो आया, ये इससे जुड़ा हुआ है। क्या कनेक्शन था एक्चुअली? जो लास्ट में मु एंडिंग है, सोच के देखो, स्टार्ट हुआ किसी और चीज़ से और एंडिंग हो रहा है किसी और चीज़ से। तो उनमें क्या कनेक्शन है ऐसा? क्यों बोला गया? मुझे तो माइंड ऐसा लगा माइंड हार्ट कि कनेक्शन में ये चीज़ क्यों डाला गया? अल्टीमेटली उनका कहना यही है कि जो भी है अपनी खुद की सुनो, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, लंग्स हो, लिवर हो, व्हाटएवर इट मे बी, कि इंटरनल एक वॉइस होती है जो आती है, उसकी सुनो। हुँ। खुद अविनाश को जी, ध्यान आपका हाँ, पॉइंट हाँ, बोलो, हाँ, कंप्लीट करो। खुद को अगर समय दोगे तो अपने को खुद से आंसर मिल ही जाता है। हुँ। अविनाश जी, आपको क्या लगता है? मेरा मेरा क्वेश्चन हाँ, समझे ना? कि वीडियो हाँ, के हाँ, कॉन्टेक्स्ट में हाँ। मैंने पूछा। हुँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन था कि सदगुरु से पूछा मैं दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ? लेट्स से अभी हम लोग के डिस्कशन के बाद इसको कर देता हूँ, गट की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ? तो जो भी ले सदगुरु लीजिए। का आंसर हुँ। है कि दोनों वो सुनो जो तुमको हैप्पी करता है, मेक्स यू हैप्पी। तो यहाँ पे अगेन फिर मैं कौन हूँ? फिर क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट्स व्हाई मतलब और मैं क्या चाहता जी, हूँ? वो खुद तो को हैप्पी करना, तो पहला है कि खुद को हैप्पी करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन हूँ? तो वही तो आप कह रहे हैं ना कि खुद को हैप्पी मीन्स अल्टीमेटली आपको तो करना वही है कि जो खुद की आंसर बोल तो खुद का जो मन बोलेगा वही आप करोगे, तो अल्टीमेटली तो हैप्पी बन ही जाओगे। हाँ, तो वही है कि वो खुद कौन है? मेरे पीयर्स ने जो बोला है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, या मेरे मम्मी ने डिज़ायर किया वैसा करना चाहिए, या मेरे को लग रहा है अपने करंट क्रेडेंशियल्स नहीं, देख के कि मैं ये यहाँ कर सकता हूँ। आपको खुद को क्या लगता है? वही बोल रहा हूँ बोलने कि वाला मैं तो कौन-सा खुद हूँ? ये तो एक्सटर्नल है कि इन्होंने बोला, उन्होंने बोला। आपका मन क्या बोल रहा है? हुँ। मन हुँ, तो वही जब उस पे डीप में जाएँगे तो फिर आएगा कि ये तो मेरा मन इसलिए बोल रहा है कि इसने ये चीज़ मैंने इनसे सुना या उससे सुना या वहाँ से आया। मतलब जी, तो मन की यहाँ पे बातें बायस्ड सुननी होके बहुत। काम नहीं चलेगा। हुँ? यहाँ यहाँ पे बायस होके काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद के मन की सुननी पड़ेगी। जो देखो मैं खुद इस को पे एक लगता अपना है। पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ मैं, थोड़ा-सा। हुँ, तो हुँ, इसकी टॉपिक कुछ और उठा, टॉपिक कुछ और उठने के बाद सद्गुरु जी कुछ और बोलने लगे। हुँ, माइंड बॉडी एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैं इसकी सुनूँ कि इसकी सुनूँ? हाउ टू लिसन वो तो प्रैक्टिस से आएगा। पहले पता हुँ, तो होना हो कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोग को इंट्यूशन रिप्लाई नहीं आता है, बहुत लोगों को लॉजिकल थिंकिंग नहीं आता है। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है मेरे अनुसार। आपको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी लॉजिकली अगर काम कर रही है, तो यू हैव टू यूज़ योर लॉजिकल माइंड। और मैक्सिमम चीज़ें जो इंट्यूटिव होती हैं, जो हार्ट की सुनने वाली या गट वाली जो आप बोल रहे हैं, जो भी, इसका रिप्लाई जनरली हम लोग यूज़ करते हैं खुद के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू एंड वर्षा, तो यहाँ पे कुछ एटिकेट से बात करने का, मैं कुछ भी तरीके से मुझे एक जेंडर फॉलो करना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, किस तरह से रिस्पेक्टफुली बात करना है, ये सारे लॉजिकल थिंकिंग से आ रहा है, ये इंट्यूशन से नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। और ये लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी जिस तरफ मूव करती है, फॉलो करती है, वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, वही नॉर्म्स फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो दीज़ थिंग्स आर ऑल माय लॉजिकल ब्रेन व्हिच इज़ वर्किंग हियर। लेकिन
इंट्यूटिव ब्रेन, अच्छा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि फलाना ने बोला है या उन्होंने ऐसा बोला है या फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है वो जनरली इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि मैं एक मिनट, प्रेजेंटेशन खत्म कर देता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटेशन। हाँ, वो जनरली इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जो रिप्लाई मुझे चाहिए, जो रिप्लाई मुझे चाहिए, मैं अपने आप से इंट्यूटिवली वो आंसर मांगता हूँ। वो हो सकता है कि किसी और को, किसी और के लिए नहीं है। मैक्स टू मैक्स काम आप देखिएगा, जो आप दिल से सुनने वाला काम करते हैं ना, वो जनरली वो आप रिप्लाई आपने मांगा है अपने आप से और आपके बॉडी ने वो रिप्लाई किया है, जिस भी ऑर्गन ने किया हो, आई डोंट केयर। वो रिस्पॉन्ड आया है, उसके बाद आप उसको अपने लॉजिकल ब्रेन से मोल्ड करके आप उसको यूज करते हैं सोसाइटी के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई परस्यू एज ए करियर, जो सदगुरु जी ने लास्ट में एंडिंग जो दिया है ना, इसको मैं फिनिश करता हूँ इससे, कि एक है कि जो सोसाइटी जो बोल रही है, जो पेयर्स बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, जो बोल रहे हैं, ये हो गया लॉजिकल थिंकिंग पे, क्योंकि वो लोग जो बोल रहे हैं वो समाज को देखते हुए कि क्या किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, किसमें ज्यादा नाम होगा तुम्हारा, कौन ज्यादा सेफ रहेगा, कौन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उस एस्पेक्ट से वो बोला गया। जब सदगुरु जी ने कहा कि 2-3 दिन 5 दिन सप्ताह भर अकेले बैठो, ही सिंपली मीन्स टू से, अकॉर्डिंग टू मी, कि लिसन टू योरसेल्फ। वो आपको एक रिप्लाई देगा। दैट इंट्यूटिव थॉट, दैट गट फीलिंग और हार्ट फीलिंग और ब्रेन फीलिंग, व्हाटएवर आप शब्द दे दो, वो आपको रिप्लाई देगा कि व्हाट योर इनर मी, जो अविनाश जी आपने बोला कि आई डोंट नो हु एम आई, इट्स ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो विच फ्रॉम विच सर्वर दिस इंटरनेट इज वर्किंग, आई डोंट केयर, बट मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं जा रहा है ये, एंड आई एम इन कनेक्शन विद दैट थिंग। हो सकता है कि मैं अपने आप को अभी नहीं जानता, बट वो जो मैं हूं, अंडरस्टैंड दिस थिंग अभिषेक, अविनाश जी, इस चीज को समझिएगा। मैं हो सकता है अपने आप को नहीं जानता हूं, लेकिन जो मेरा रियलिटी है, वो जिसको जानने की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे जानता है। लेकिन वो मुझे हर समय देख रहा है, वो मुझे हर समय रीड कर रहा है, और वो मुझसे बात भी कर सकता है, वो मुझे रिप्लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट इनलाइटेंड, और कह सकते हैं कि आपको कोई जिंदगी का या रियल में ज्ञान नहीं हुआ है, तो वी आर इन अंधेरा, डार्क फॉरेस्ट, और हम अपने चीजों को ढूंढ रहे हैं, वी आर इन सर्च। बट जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमें देख रहा है कि ये बंदा खोया हुआ है, अभी इसको सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन वो हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तब मैं सबसे बेस्ट क्या करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा, चिल्लाऊंगा कि क्या करूं मैं, उधर से रिप्लाई आएगा। तो जो अपने आप में सेल्फ टॉक जो होता है, वो यही तो है कि ऑल्दो एज यू सेड कि मैं कौन हूं मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट केयर मुझे पता है कि नहीं, मुझे इतना पता है कि वहां तक आवाज जाएगी मेरी और वहां से रिस्पॉन्ड आ जाएगा। जिस दिन मैं उसको जान जाऊंगा तो वो तो अलग बात है, इस जन्म में जानूं कि 100 जन्म में जानूं कि 1000 जन्म में जानूं, वो मैं कंसर्न करता भी नहीं है। मैं इस लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं उससे सवाल पूछूं, तो वो पर्सन जिसको कहते हैं ना हमारे आत्मा का परमात्मा, वो रिप्लाई दे देगा कि प्रशांत, what you should do, what you should pursue as a career wise, as a life partner wise, as whatever question you are asking, वो रिप्लाई कर देगा। आपको पता नहीं है किसने किया है, लेकिन उसी ने किया है, ये आपको पता है। दैट इज द गट फीलिंग, दैट मैं इज द इसी पे ऐड इंट्यूटिव थिंग। करना चाहता हूँ हाँ, कि मेरे को ये चीज आया तो फिर मैं इसके पीछे लॉजिकल रीजन सोचना स्टार्ट किया कि मेरे पेट को फिर कैसे पता चल गया। मैं बोल रहा हूँ लाइक मेरे को पेट को छोड़िए, अरे पेट, दिल, मैं नहीं, दिमाग, मैं इसके पैर, पीछे मैं घुटना, अपना नाखून। रीजनिंग देना चाह रहा था हम्म, कि मतलब मेरे पेट को फिर कैसे पता चल गया। चलो मेरा आंख दिमाग काम तो ये तो फिजिक्स और मैथ्स पे करता है, पेट किस पे फिर काम करता है। देन आई अच्छा, अंडरस्टूड कि वो डायरेक्टली केमिकल एनालिसिस पे कर रहा है। तो हमारा हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा केमिस्ट्री के अभी डिस्कवरीज बाकी हैं, तो पता चलेगा कि वी कैन रियलाइज ट्रुथ जस्ट बाय थ्रू नोइंग द एनवायरनमेंट। मतलब पेट को इसी तरह से पता चल रहा है कि भाई यही सत्य है, तुम इसी काम के लिए आए हो। पेट को इसी से पता चला है कि वो डेटा का डायरेक्टली एनालिसिस कर लिया, जो खाए हैं इससे, हाँ ये इतने दिनों से खाया ये बंदा ये कर रहा है। तो
मतलब टू लॉजिकल रीजनिंग की ठीक है परमात्मा है मेरे अंदर मेरा पेट, बट उसको कहाँ से पता चला? तो वही है ठीक कि है, वो अगर दिस इज द अगर एक्सपेक्ट आप ऑफ गट बैटिंग होता है। गट फीलिंग का अगर इंट्यूशन की बात करें तो वो फूड ले रहा है, फूड कहाँ से आ रहा है? बाहर से फूड कहाँ बन रहा है? ज़मीन पर, ज़मीन किससे जुड़ा हुआ है? मिट्टी से, मिट्टी किससे जब पेड़ वही बनता वही है तो किससे बनता है? हवा, पानी, धूप सबसे बनता है। मतलब एक फूड जो है दैट थिंग इज़ कनेक्टेड विद द यूनिवर्स इन एवरी यस एस्पेक्ट। और जब वो यस फूड कन्वर्ट होके आता है व्हेन आवर बॉडी, आवर इंटेस्टाइन, आवर बेली इज़ प्रोसेसिंग दैट थिंग, इसका मतलब दैट यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। इस तरह से ले लीजिए। यस हमें यही यही मतलब हुँ। मैं इसके पीछे का लॉजिक कि परमात्मा को भी तो कैसे पता चलता है तो अच्छा इसलिए ये क्यों परमात्मा है, क्यों क्योंकि लॉजिक यूनिवर्स का लगाना? पार्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड अभी है तो यूनिवर्स से। अभी तो आप मना कर रहे थे कि मैं लॉजिकल ब्रेन को उतना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता। अगेन यू आर जस्ट जो इंट्यूटिव है उसमें भी आप लॉजिक लगा रहे हैं फिर। क्योंकि आई नीड टू नो, मैं लॉजिक को इसलिए आई कंसिडर माई सेल्फ कि ठीक है मैं लॉजिक मेरे को इजी लगता है इसीलिए ब्रेन को इजी शायद नहीं इज्जत देता हूँ जो भी रीजन हो, क्योंकि बट आई लेकिन जो नीड टू हैव एवरीथिंग इन परफेक्टली लॉजिकल वे अंडरस्टूड, क्योंकि मैं उतना ही मूर्ख हूँ कि मैं लॉजिकली समझ पा रहा हूँ, तो तो लेकिन इसलिए मैं अपने लिए क्लासिफाई। लॉजिकल का बहुत लिमिटेशन है। अच्छा चलिए लॉजिक यस से एक बात याद आया। आपको याद है मैंने ऑटोमाटा सब्जेक्ट के बारे में आपसे एक बार बात किया था, जी थ्योरी जी ऑफ कंप्यूटेशन। जो ऑटोमाटा है वो एक समय के बाद रुक जाता है। मैंने एक सिलेबस जो है उसका बुक एंड होता है। वहाँ पे वो एंड इसलिए होता है ना कि ऑटोमाटा वर्षा तुमको समझ में शायद आएगा कि नहीं अभी, फिर भी मैं हेल्प कर समझाता हूँ मैं। जो कंप्यूटर साइंस जिससे डेवलप हुआ है ना, तो हम लोग लॉजिकल लैंग्वेज को, लैंग्वेज मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर का लैंग्वेज, इसको सिंपली भाषा में समझो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में लॉजिक ढूँढते हैं हम, ताकि अगर हम उस लैंग्वेज में लॉजिक ढूँढ लिए, तो विद दैट लॉजिक वी कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर। ठीक है? अब सवाल ये होता है जब ऑटोमाटा सब्जेक्ट जब खत्म होता है, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि लैंग्वेज बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेज़ हैं, बट हम कुछ ही लैंग्वेज का लॉजिक ढूँढ पा रहे हैं। बाकी सब जो लैंग्वेज है उसका लॉजिक हमारा ह्यूमन ब्रेन अभी तक क्रिएट नहीं कर पा रहा है। जिस दिन किसी और नए लैंग्वेज का हम लॉजिक क्रिएट कर लेंगे, वी मेक आवर कंप्यूटर इवन मोर पावरफुल। बस वर्षा समझी? ये चीज़ है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग है ना, इसका बहुत लिमिटेशन है। इवन मैं अब चलो वर्षा तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, मतलब तुमको बताता हूँ, जो हमारा नंबर लाइन है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 2 टाइप के नंबर हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर की संख्या जितनी भी होगी, अविनाश जी करेक्ट कीजिएगा, इर्रेशनल उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब रैशनैलिटी की, लॉजिकल थिंकिंग की, व्हिच कैन बी डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड लॉजिकली, उसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाहर जो इलॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं, इर्रेशनल है। इर्रेशनल किसको बोल रहे हैं हम लोग? जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन के थ्रू वी आर अनएबल टू इनकोड इट। वर्षा आर यू गेटिंग? बाबा को सब पता होगा, मैं आपके लिए कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा हूँ मैं कि जिसको हम लोग इनकोड कर पा रहे हैं वो लॉजिकल हो गया, जिसको हम इनकोड नहीं कर पा रहे हैं विद आवर ह्यूमन ब्रेन, वो हमारे लिए इलॉजिकल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 साल का बच्चा जो है, उसका ब्रेन कैपेसिटी तुम्हारे से बहुत कम है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तुमको पता है कि इट्स लॉजिकली करेक्ट, बिकॉज व्हाई योर ब्रेन इज, योर सेरेब्रल कैपेसिटी इज मच मोर देन दैट 5 ईयर ओल्ड किड। अब इस कारण से क्या होता है कि जो चीज, जो लॉजिक तुम उस इंसिडेंस को दे पा रही हो, वो 5 साल का बच्चा नहीं दे पा रहा है। तो उस बच्चे को वो कहते हैं ना कि इलॉजिकल लग रहा है, व्हाई दे आर डूइंग इट। बट तुमको पता है कि व्हाई यू आर डूइंग इट, बिकॉज व्हाई, आपका मेंटल कैपेसिटी उस बच्चे से ज्यादा है, आपने उस इंसिडेंस को एक लॉजिकल इनकोडिंग दिया है। बट इन द सेम वे ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सोसाइटी में है और समाज में है और इस ब्रह्मांड में है, जिसपे आपका ब्रेन उसको लॉजिकली डिकोड नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो हमें इर्रेशनल लगती हैं, बट वो लॉजिकल चीजों से कई गुना ज्यादा है। अविनाश जी ठीक ठाक बोला मैंने इस बारे में? है तो इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई जैसे आर्टिस्ट बनना इतना टफ क्यों है? आर्टिस्ट बनना इन द सेंस कि पेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेंटर बहुत लोग बन सकते हैं। आर्टिस्ट मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको क्रिएट करना। मान लेते कि जैसे अविनाश जी आपके पीछे एक पेंटिंग बनी हुई है हनुमान जी की, ये एक पैटर्न में हनुमान जी बने हुए हैं, ठीक है? अब मेरे ब्रेन ने इसको देख लिया, अब मैं इस टाइप के हजारों इमेज बना सकता हूँ इफ आई नो हाउ टू ड्रॉ, ओके?
लेकिन अगर आप मुझे बोले कि प्रशांत कुछ ऐसा पेंटिंग बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाया हो, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं, कहीं नहीं, उस चीज को क्रिएट करने के लिए मेरा ब्रेन जहां तक सोच सकता है उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा उसको. Then only that thing which is irrational till now for me, if I can encode that thought in a logical way, तब वो irrational से rational हो जाएगा तुरंत. पर हमारा ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम है और ये यूनिवर्स और ये ब्रह्मांड अथाह है. इसलिए Sexy. हमें अगर ये लगता है, जैसे अविनाश जी आप जो बार-बार बोल रहे हैं ना कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ब्रेन को, आई टोटली एग्री विद यू कि हमारा अगर आपको लगता है या ऑडियंस में किसी को भी लगता है कि आपका ब्रेन बहुत शार्प है एंड यू आर वेरी फास्ट थिंकिंग और आपका ब्रेन बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, आप बहुत स्मार्ट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्मार्ट हो, भगवान ने आपको अच्छा बनाया है. बट याद रखना दैट इज वेरी लिमिटेड. वेरी लिमिटेड मतलब जो दुनिया के बड़े से बड़े हाई आईक्यू पीपल भी है ना, वो भी नेग्लिजिबल हैं इस द यूनिवर्स के इंटेलिजेंस के सामने. मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो कोई भी चीज उठा लूं, एक पत्ता भी उठा लूं, एक पेड़ भी उठा लूं, उसका कॉम्प्लिकेशन और उसका वर्किंग और जस्ट सोच के मैं अपने बॉडी को ही देखता हूँ कि भाई कितना स्मार्ट है, कितना तरीके से, कितने हार्मोनल चीजें, कितने केमिकल चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं और वो प्रोसेस हो रहा है और मैं उछल कूद कर रहा हूँ, चाहे जिम में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, स्टिल दैट थिंग हैपनिंग फ्लुएंटली. कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट थिंक हाउ स्मार्टली दैट मशीन हैज बीन क्रिएटेड. नॉट ओनली द ह्यूमन बॉडी, एनी एनिमल बॉडी, एनी ट्री, प्लांट, एनीथिंग. क्या बोलते हैं अविनाश जी? हाँ, मैं टोटली एग्री करता हूँ. हम लोग वीडियो से भी बहुत दूर आ चुके हैं बात करते करते. हाँ, नहीं, ये एक्चुअली मेन यही था ना कि लॉजिकली सोचें कि इंट्यूटिवली. वर्षा, है कि नहीं? कि हम इस तरह सोचें कि इस तरह सोचें. सच्चाई ये है कि आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा. मैं कंक्लूड करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इस वीडियो का और इससे, कि वी हैव टू थिंक इन बोथ वे. आप केवल इंट्यूटिव वे में जाओगे तब भी आप मार खाओगे सोसाइटी में, और अगर केवल आप लॉजिकली वे में जाओगे तभी आप पर्सनल लाइफ में मार खाओगे, क्योंकि आपने अपने गट फीलिंग, अपने हार्ट की फीलिंग या फिर अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनी. तो दोनों को सुनना जरूरी है, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है. उसके बाद आपको एज ए कॉन्शियसनेस, मैंने कहा था ना, एग्जांपल दिया था ना अविनाश जी आपको, कि आपको अपने आप को डीअटैच करके दोनों चीजों को बैलेंस करके एट दैट मोमेंट कौन सा चीज बेटर है वो चीजें आपको अप्लाई करनी है. वर्षा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर? मुझे भी यही लगता है कि लाइक अपनी खुद की सुननी चाहिए, साथ ही साथ में सब कुछ चीजें देख लेना चाहिए कि क्या अपने लिए सही है, क्या नहीं गलत है करके, और मन की सुने. अविनाश जी, व्हाट्स योर कंक्लूजन हियर? बस खुश रहें, और मेरे को तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ किसका सुनना है, बट खुश रहें. सबको सब कुछ पता है यार. मेरा इस टॉपिक पे, हाँ, और दिल की अपने खुशी के लिए जो सुने वो सही लगे. तो फाइनली क्या रेट करेंगे अविनाश जी आप इसको, इस वीडियो को? इस वीडियो को मैं, मतलब ये काफी इन डेप्थ था, बट मैं 8 आउट ऑफ 10 लिख. 8 आउट ऑफ 10. वर्षा, आप? 8.5. 8.5. मैं इस वीडियो का लेंथ, इसका टॉपिक और इसका डेप्थ को देखते हुए आई विल गो, एक्चुअली थोड़ा सा और, जब इसमें जो सदगुरु का एक्सप्लेनेशन था हाईली मेटाफोरिक है. वैसे सदगुरु जी के मैक्सिमम वीडियो हाईली मेटाफोरिक होते हैं. इफ यू नो हाउ टू डिकोड दैट मेटाफोर, तो आपके लिए सदगुरु के सारे वीडियो बहुत ही पानी की तरह लगेंगे. इट्स लाइक फ्लूइड, अदरवाइज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो आई विल गो विद 7.5. मेटाफोरिकली बहुत ज़्यादा डेंस था ये, तो टू डिकोड दैट थिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे हमने सीखा है. डिस्कशन था, हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं. इसी को कहते हैं डिस्कशन, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन, कि अनलेस अंटिल वी विल नॉट डिस्कस विद ईच अदर कि व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टिल देन वी वोंट ग्रो. तो इसलिए आप भी अपने दोस्तों से इस टॉपिक पर डिस्कस करें जिसको इंटरेस्ट है, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. अब और भी वीडियोस हैं, मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.
Peace.